Hello everyone, we'll continue with carboxylic acids. We are doing methods of preparation. We are on 7th method by hydrolysis of ester. Okay. Now, when ester, you add water, we get acid and alcohol. Forward reaction is called hydrolysis, reverse reaction is called esterification. Dilute sulfuric acid लोगे तो hydrolyze होगा, concentrate लोगे तो esterification मतलब ester का preparation होगा. Okay. Now see, we take ester R C double bond O R dash. इसमें सिर्फ वाटर ऐड करना है. अभी H जाएगा OR के साथ और OH लग जाएगा कार्बन को. So we'll get acid also and we'll get alcohol also. Okay. Copy down general reaction. Then we'll do one example. Okay. As I told you, there is hydrolysis of ester is a reversible reaction. और bond breaking के वक्त acyl oxygen, ये acyl oxygen will go with hydrogen to form alcohol. So this acyl bond will break out here. So this will go to form alcohol and this acyl group will get converted to acid. So there's a breaking of acyl linkage. Copy down general reaction, then we'll do one example. Okay, write down example. ये इसका एस्टरिफिकेशन करना है. पहले इसका नाम बताओ और फिर एस्टरिफिकेशन करो. कंप्लीट द रिएक्शन. You have to write the name of the ester, hydrolyze it, and give me the product which are obtained. Yeah. हाँ, Shadab correct, Om correct. Okay, complete the reaction with an example. डाइमिथाइल ईथर. ईथर नहीं है, एस्टर है. जेन. हाँ, correct it is. Amruta correct, Shadab correct, Om correct. Methyl formate. ओके. और मिथाइल मीथेनोएट, इसमें वाटर ऐड करोगे. Okay, so we'll get, yeah, formic acid and methanol. Formic acid and methanol. चलो अभी ये वाला करो.
इसका नाम है इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट। या वेरी गुड जैन, वेरी गुड। हाइड्रोलाइज करोगे तो विल गेट एसिटिक एसिड and we'll get ethyl alcohol, ethanol. Okay. Last one. Can't complete the reaction for last one. Shadab, I'll show you after this. Okay. Ethyl benzoate on hydrolysis will give you benzoic acid and ethyl alcohol. Yeah, Mrunali, correct. Benzoic acid and ethyl alcohol. Okay. Is it clear up till here? Any difficulty? I'll just show you the previous slide, Shadab, for the note you wanted. So ester on hydrolysis gives acid and alcohol. Okay. And hydrolysis of ester is reversible. I told you, reversible of esterification. हम ये esterification भी करेंगे chemical property में, और ये hydrolysis भी करना है. So both are important. Forward and backward दोनों करना है. ठीक है ना? Okay. Now next one, up till here it is done. Okay. Now next one, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन है, फिनाइल प्रोपियोनेट. अभी इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? फिनाइल प्रोपियोनेट ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू व्हाट? और यहाँ पे हमको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस नहीं करना है. So if we carry out alkaline hydrolysis, we get sodium salt of acid. तो यहाँ पे कंप्लीट करो रिएक्शन. NaOH, NaO, खाली जो H है ना वो बेंजीन रिंग और O के साथ जाएगा और ONA यहाँ पे लग जाएगा. या शादाब, they are called soap. Alkaline hydrolysis of fatty acids are called soap. Fatty acids are higher monocarboxylic acid. 6 कार्बन 8 कार्बन 10 कार्बन के ऊपर होता है ना, तो उनको फैटी एसिड बुलाते हैं. ओके. Yeah, we get sodium propionate and we'll get phenol. Sodium propionate and we'll get phenol. Sodium salt of fatty acids, keep in mind. Sodium salt of fatty acids. Fatty acids are higher monocarboxylic acid. 8-10 कार्बन से ज्यादा होना चाहिए तो उनको फैटी एसिड्स बोलते हैं. एंड देयर सोडियम सॉल्ट्स आर कॉल्ड सोप, और प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन.
द प्रोसेस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। और फिर एसिड चाहिए तो फिर से हम क्या करेंगे, जो सोडियम सॉल्ट मिला उसको HCl से रिएक्ट कर लो एंड वी गेट एसिड, बिकॉज वी आर डूइंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। ओके, सो यहाँ पे याद रखना है अल्कलाइन हाइड्रोल इज द वेस्टर and it is called as saponification. Saponification means all higher sodium salt, no higher sodium salt, प्रोपियोनिक एसिड नहीं, उससे ज्यादा बड़े होने चाहिए, इसको सोप नहीं बुलाते। कम से कम 6 कार्बन से ऊपर होना चाहिए, केप्रियोइक एसिड से ऊपर, केप्रियोइक, फिर उसके ऊपर वाली चलेगी, लॉरिक है, पैल्मेटिक है, स्टेरिक एसिड है, ठीक है ना, तो वो चाहिए। प्रोपेन को हम फैटी एसिड्स नहीं बुलाते। Okay, so sodium salt of fatty acids means there should be minimum 6 carbon and above, and fatty acids का एक है कि नेचर में they exist only in even numbers, तो 6 के बाद 8, फिर 10, 12, 14 in nature, हाँ, in nature they exist only in even numbers. Okay, और इसमें सोडियम सोप बनते हैं ना, वो हार्ड सोप होते हैं, पोटाशियम सोप होंगे ना वो सॉफ्ट सोप होंगे। दोनों में डिफरेंस वो होता है, सॉफ्ट सोप मतलब उसमें लादर ज्यादा होती है, फोम ज्यादा आता है, शैम्पू वगैरह कैसा रहता है उसमें ज्यादा फोम होता है, तो दे आर सॉफ्ट सोप एंड सोडियम सोप आर हार्ड सोप। ओके, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। अगर तुमको सपोनिफिकेशन पूछा तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लिखो ही मत, आर लेके करो, खाली जनरल रिएक्शन लेके, और बोल दो ये सोप है एंड आर इज अ फैटी एसिड, ठीक है ना। यहाँ पे तुम कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे तुम कोई भी अल्काइल ग्रुप या आर डैश ले लो, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और नीचे लिख देना इट इज अ एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना, इट इज एन एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। तो इन जनरल रिएक्शन दिखाना है, बोलना नहीं है कितने कार्बन है। इज इट क्लियर? और फिर जो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बनेगा वो सोप, उसको लिख सकते हो, और प्रोसेस को सपोनिफिकेशन। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये लास्ट मेथड है ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में, अल्काइल बेंजीन। Okay, primary or secondary alkyl group which are present on aromatic ring get oxidized to acid. Tertiary alkyl group will not get converted, है ना, तो खाली primary या secondary alkyl group होंगे ना, तो they will get converted to acids. Now see, we'll do some examples on this. ये लंबी चेन है, okay, और n-butyl, n-butyl benzene बोल सकते हो, या तो 1-phenyl butane भी बोल सकते हो। You can call it by two names, n-butyl benzene, और IUPAC नेम के हिसाब से ये हो जाएगा 1-phenyl butane। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है, अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बुलाते हैं, इज अ बेयर्स रिएजेंट। तो ये पूरा ग्रुप जो है ना, जितना भी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड विल गेट पोटेशियम बेंजोएट, and all this carbon will go as carbon oxide and water. Okay, यहाँ पे nascent oxygen ऐड होंगे and this will get converted to carbon oxide water, और फिर dilute HCl के साथ हम benzoic acid में convert कर लेंगे, ठीक है। तो you can write reaction as it is which is shown in the textbook like that. N-butyl benzene on alkaline KMnO4 will give potassium benzoate. यहाँ पे nascent oxygen ऐड होता है और यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड वाटर एलिमिनेट होता है। फॉर योर रेफरेंस, लिखना है तो लिख सकते हो, खाली नॉलेज के लिए। ऑक्सीडेशन के वक्त वी ऐड नेसेंट ऑक्सीजन, जेन वही बोल रहा हूं कि सारे कार्बन है ना, सारे कार्बन, ये सारे कार्बन कार्बन ऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल ऑल गेट कन्वर्टेड टू कार्बन ऑक्साइड वाटर। ओके, सो विल गेट पोटेशियम बेंजोएट, उसके साथ कार्बन ऑक्साइड वाटर,
तो वो लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बन होगा ना, सिर्फ टोल्यूइन होता तो बेंजोइक एसिड बन जाता सीधा सीधा, है ना। इसका नाम है 1 फिनाइल ब्यूटेन और एन ब्यूटाइल बेंजीन। वी कैन कॉल इट एज 1 फिनाइल ब्यूटेन और एन ब्यूटाइल बेंजीन। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, ये केसीएल बाय प्रोडक्ट यहाँ पर। हाँ, ठीक है ना। ना देखो, ऐसे अल्कीन है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। सो हियर वी हैड नेसेंट ऑक्सीजन, फिनाइल इथीन। ओके, अभी देखो ये बैलेंस करके दिखाया गया है। हियर वी कैन यूज KMnO4, एसिडिक KMnO4। अब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, दिस विल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, 2 ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो ये बेंजोइक एसिड बनेगा along with that carbon dioxide and we'll get water. Benzoic acid, carbon dioxide and water. Okay, so phenyl ethene on acidic oxidation with KMnO4, acidic KMnO4 के साथ oxidation होगा, we get benzoic acid. Can copy down and then we'll do the last one. Primary and secondary alkyl group get oxidized, शादाब। टर्शरी ग्रुप होगा ना, मतलब यहाँ पे टर्ड ब्यूटाइल होता तो वो बेंजीन के साथ, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, शादाब समझा। हाँ, देखो अभी यहाँ पे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? कम ऑन, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन हियर? ये जो कंपाउंड लिखा है उसका नाम बताओ। हाँ जैन, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? या आयशा, करेक्ट। चलो बाकी लोग आंसर दो। हाँ मृणाली, करेक्ट। ठीक है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। आयशा 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है ना, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो वी कॉल इट एज साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन को जब ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगा? चलो कोई बता सकता है व्हाट विल हैपन? साइक्लोहेक्सीन को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगा? हाँ, पायरोलिसिस होगा। फिर नहीं, जेन इनकरेक्ट। देखो अभी डबल बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन भी एसिड में कन्वर्ट होगा, ये कार्बन भी एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा था तो ये एसिड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे एक ही कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड नहीं बना और कार्बन ऑक्साइड वाटर बन गया, और यहाँ पे तो लिंक रहेगा ना, सो विल गेट अ कंपाउंड लाइक दिस, दोनों तरफ COH आ जाएगा ऐसे। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम बताओ।
हाँ ओम, वेरी नाइस, करेक्ट। हाँ साइक्लो नहीं आएगा जैन, अभी तो साइकिल हट गई, साइक्लो हटा दो उसमें से। हाँ अमृता करेक्ट। हाँ जैन करेक्ट। इसका कॉमन नेम याद है, मैंने बोला था ओमेगा, OMEGA, ओमेगा में से ई निकाल के एस लगाना है। तो उनके कॉमन नेम मिलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के, ऑक्सालिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, हाँ ग्लूटरिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। करेक्ट अमृता। ओके, या शादाब, एडिपिक एसिड है नाम उसका। ओके, या सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेक्सेन डायोइक एसिड और एडिपिक एसिड। 1,6 नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बिकॉज एसिड्स आर ऑलवेज टर्मिनल। तो 1,6 डायोइक एसिड लिखो या हेक्सेन डायोइक एसिड लिखो, चलेगा, इट इज अलाउड। ओके, यहाँ पे तो खाली दोनों ऑक्सीजन यहाँ लगेंगे, दो ऑक्सीजन यहाँ लगेंगे बस। So with this we complete with methods of preparations. Now we'll do physical properties and then we'll do chemical properties. Okay. चलो यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना सबका? Keep writing, don't do it orally. Write and practice. अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की। लोअर एलिफेटिक एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड with pungent odor. Higher members are waxy solid. Lower ones are liquid. Higher ones are solid. Solubility. Now acids are soluble in water because acid can form hydrogen bonding with water, but solubility decrease with increase in molar mass. Carboxylic acids are soluble in organic solvent. अभी ये तो सारे organic compound के लिए applicable है. They are soluble in organic solvents. ठीक है? So acids are soluble in water because they form hydrogen bonding with water. और solubility में भी तुमको समझाया है, सबसे ज्यादा soluble acids होते हैं, फिर अल्कोहल, फिर अमाइंस, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का समझाया था, है ना? अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखना है बाद में। लीव वन पेज फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन राइट डाउन ऑल दिस, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, third one, boiling point. Again, carboxylic acids have higher boiling point than alcohol, amines, सबसे ज्यादा है। Acids हमेशा ऊपर आएंगे boiling point में because they are held together by strong intermolecular force of attraction. So acids have highest boiling point than alcohol, amines, aldehydes, ketones, hydrocarbon, ether, सबसे ज्यादा। ठीक है, मैंने बार बार ऑर्डर भी लिखाया है, इफ यू रिमेम्बर, है ना? या acid exist as a dimeric form due to hydrogen bonding. Dimer, they exist, two molecules come together and they are held together by hydrogen bonding and form a dimer. हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, we'll do fourth one now. ये जो है ना एसिड की स्ट्रेंथ, अभी नीट जेई में दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और यू नो लाइक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड करना, ये सब बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। तो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ध्यान देना इसमें। और मैं तो बोलूंगा ये पार्ट हम लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक बिकॉज दे डिसोसिएट in water to form carboxylate ion, and carboxylate ion undergo resonance stabilization, तो reverse reaction decrease होता है and few hydrogens are produced and therefore they are acidic in nature. Like phenol के लिए भी समझाया था, phenols are acidic and alcohol are neutral, तो phenoxide ion resonance इनमें इन्वॉल्व हो जाता है
और इसलिए रिवर्स रिएक्शन कम हो जाता है, तो फिनॉल एसिडिक हो जाता है। पर अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए अल्कोहल न्यूट्रल है। ऐसे ही एसिड जब पानी में डालोगे तो कार्बोक्सिलेट आयन जब फॉर्म होता है, इट अंडरगोज रेजोनेंस। ओके, फिर ये के एसिड के लिए जब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट को हम के बी बुलाते हैं। ठीक है ना, चलो ऐसा करो स्क्रीनशॉट ही लो, क्योंकि इतना सारा लिखने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। देखो स्क्रीनशॉट, and they are weaker than mineral acid. Carboxylic organic acids are always weaker than mineral acid. HCl, H2SO4, H2, HNO3, मिनरल एसिड से हमेशा ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं। कार्बोनिक एसिड ज्यादा वीक है इनमें, ये उनसे भी वीक है मिनरल एसिड्स में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, ये वाटर कांस्टेंट हो जाता है, सो K इनटू वाटर order of strength with respect to, like Shadab, I did not get you. Formic or acidic, हाँ हम लोग करेंगे वो, yeah we are going to do that, we are going to discuss all that strength. Okay, Ka, अभी ये आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना, उसमें Kb आएगा, so then you will understand the entire concept. Greater the value of Ka, stronger is the acid. जितना K की वैल्यू ज्यादा होगी ना, उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। सो K इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड जितनी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, लार्जर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। खाली ये पार्ट देखो, लार्जर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, और पीके होता है उसका नेगेटिव लॉग, तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीके स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। के के वैल्यू में बड़ा वैल्यू होनी चाहिए और पीके के वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो एसिड इज स्ट्रॉन्ग। Ka value should be big, pK value should be strong, small, then acid is strong. ठीक है, तो strong acid के लिए Ka value is big, large value, and pK value should be small, तो वो acid strong गिना जाता है। समझा ना, तो खाली उतना कंक्लूजन याद रखना है, K वैल्यू बिग होनी चाहिए, pK वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, बस। बाकी कुछ नहीं लिखोगे तो चलेगा, खाली उतना याद रखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। pK is nothing but negative log of K, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। और यहाँ पे इतना सब नहीं लिख के खाली इतना लिखोगे ना, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka, लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pK, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, बस खाली उतना लिखना है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ये वाला देखो, अभी ये सब जितना, एक्चुअली पहले फॉर्मिक एसिड, जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ता है ना, फॉर्मिक, एसिडिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटेरिक, जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतना एसिड वीक होते जाएगा। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसीलिए एसिड वीक हो जाता है। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ट्राइक्लोरो, फिर डाइक्लोरो, मोनोक्लोरो, और खाली एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड इज वीकर। जैसे क्लोरीन लगाओगे, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो एसिड को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, तो जितना ज्यादा क्लोरीन उतना एसिड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर देखो ये वाला, क्लोरीन कौन से डिस्टेंस पे लग रहा है, फर्स्ट कार्बन पे 1 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, सॉरी 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 3 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 4 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे कॉमन नेम में अल्फा क्लोरो, बीटा क्लोरो, गामा क्लोरो, ब्यूटेरिक एसिड, ऐसे हो जाएगा। ओके, चौथा है कौन सा हैलोजन लगा रहे हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो फ्लोरीन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू क्लोरीन, कंपेयर टू ब्रोमीन। ठीक है ना, तो ये समझा, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, एंड दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट जेईई, विल बी डूइंग लॉट मेनी क्वेश्चंस ऑन
दिस पार्ट, और सब कुछ लिखना है. प्लीज राइट इट डाउन, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर. जितने क्लोरीन लगाओगे, कौन से डिस्टेंस पे लगाओगे, कौन सा हेलोजन लगाओगे, तो एसिड कितना स्ट्रांग होगा. ओके हाँ, देखो ये सब है. ये जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा. ट्राइफ्लोरो, नाइट्रो, साइनाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फिनाइल. बेंजीन रिंग लगने से एसिड वीक हो जाएगा. देखो ऐसे एरोमेटिक रिंग लगने से. हाँ, अभी इसमें वो नहीं मैंने लिखा है. इसके बाद तुमको चाहिए तो लिख, एक खाली लिख दो. फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड, स्ट्रॉन्गर देन प्रोपियोनिक एसिड. वो क्यों नहीं आया? हाँ, मेरी मिस्टेक हो गई है. फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड, स्ट्रॉन्गर देन प्रोपियोनिक एसिड. ठीक है ना? तो जितना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा उतना एसिड वीक होते जाएगा, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एसिड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा. ओके अभी एरोमेटिक एसिड में ये साइनाइड नाइट्रो ग्रुप लगाओगे ना, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे ना एरोमेटिक एसिड में, उतना वो वीक होते जाएगा. चाहे टाइम अप हो जाएगा, तुम लोग फिर से लॉग इन करना. ओके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो एसिड एरोमेटिक एसिड वीक हो जाएगा. तो बेंजोइक एसिड में साइनाइड एंड नाइट्रो ग्रुप है तो स्ट्रॉन्ग एसिड. मिथाइल ओएच ईथर या अमाइन है तो वीक एसिड. ठीक है ना? देखो यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगाए तो स्ट्रॉन्ग, मिथॉक्सी लगाए तो वीक.